हेलो एवरीवन। मैं हूं सिकंदर, मेरे साथ हैं सुदय और विशाखा। आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है कोलंबस। कोलंबस याद है ना? हाँ हाँ, वही क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका का खोज किया था। परंतु क्या यह बात आपको पता है कि कोलंबस अमेरिका का खोज करने के लिए नहीं बल्कि एशिया और भारत का खोज करने के लिए निकला था। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसे। अच्छा। हाँ, जैसे साल 1485 में जब वो किंग जॉन, जो कि उस समय पोर्तुगल के राजा थे, वहाँ वो मदद मांगने गया था अपने एक्सपेडिशन के लिए, तो उसने उन्हें मना कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और 7 साल बाद क्वीन इजाबेला, जो उस समय कैस्टाइल की रानी थी, और किंग फर्डिनेंड ऑफ आर्गन, इन्होंने उसे सपोर्ट किया था और वो फिर अपने एक्सपेडिशन पे जा पाया था, एक्सप्लोरेशन योगेश पे जा पाया था। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि न सिर्फ वो नई जमीन तलाशना चाहता था बल्कि वहाँ कैथोलिज्म भी स्प्रेड करना चाहता था। और आज न सिर्फ हम कोलंबस के बारे में बात करेंगे, उसके जीवन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एज नेविगेटर उनकी नेविगेशन स्किल्स की। और तब क्या हुआ जब स्पेनिश लोग अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं, नेटिव्स के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा था। हम बात करेंगे कि दोनों सोसाइटीज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या थे, और कोलंबस की इस डिस्कवरी का अमेरिका और पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ा, हम इस बारे में भी बात करेंगे। पार्ट 1, हु वाज रियली क्रिस्टोफर कोलंबस? Born sometime between 1451 and 1452, was an Italian explorer and navigator who forever changed the course of history. Though his goal was to find a western trade route to Asia, his 4 voyages across Atlantic Ocean in the late 15th century inadvertently opened the door for European exploration and colonization of the Americas. While Columbus is often credited with discovering the New World, it is important to remember that people already inhabited the Americas for thousands of years before his arrival. However, his voyages undeniably mark a pivotal moment in human history, initiating a period of immense exchange, the Columbian Exchange, between the Americas, Europe, and Africa. Columbus' legacy is complex and debated. He was a skilled sailor and determined adventurer, but his treatment of the indigenous population he encountered is a dark stain on his accomplishments. Let's dive deeper into his life and explore the lasting impact of his voyages. The Americas before Christopher Columbus' arrival in 1492 was a rich tapestry of thriving civilizations. This period, known as the pre-Columbian era, lasted for thousands of years and witnessed the rise and fall of numerous indigenous cultures, each leaving its mark on history. Across North and South America, complex societies arose with sophisticated social structures, impressive architecture, and remarkable artistic achievements. Here are just some of the major civilizations that flourished before Columbus. The Olmec. Considered the mother culture of Mesoamerica, the Olmec civilization flourished along the Gulf Coast of Mexico from 1200 BCE to 400 BCE. They are known for their large-scale basalt sculptures, particularly the colossal heads, and developed a writing system, the earliest in Mesoamerica. The Maya. The Maya civilization reached its peak from 200 to 900 CE. They were spread across Mexico, Belize, Guatemala, and Honduras, and built impressive city-states like Copan, Tikal, and Chichen Itza. The Maya developed a complex writing system, a very accurate calendar, and advanced mathematics. The Aztecs. The Aztec Empire was dominant political power in central Mexico in the late post-classical period from 1300 to 1521 CE. The Aztec capital, Tenochtitlan, was an island city based on Lake Texcoco and was one of the largest cities in the world at that time. The Inca. The Inca Empire was the largest empire in pre-Columbian America. It flourished in Andes Mountains and western South America from 1438 to 1532 CE. The Inca were known for their impressive stonework, extensive road system, and agricultural innovations like terraced farming. These are just a few examples of many complex societies that thrived in the Americas before Columbus. The pre-Columbian era was a time of great innovation and cultural achievement, and these civilizations continue to fascinate us even today. कोलंबस की नौवहन क्षमताएं। कोलंबस की नौवहन क्षमताओं के संबंध में विद्वानों के बीच एक बड़ा विवाद है।
आरंभिक व्याख्याएं अन्वेषण और विजय की उत्सवपूर्ण आख्यानों से चिन्हित है। उदाहरण के लिए कोहन लिखते हैं कि कोलंबस एक अच्छा प्राकृतिक पायलट प्रतीत होता था, जो जानता था कि हवाओं और धाराओं का लाभ कैसे उठाया जाए और कैसे पश्चिमी हवाओं का उपयोग करके वापस आना है। इसके अलावा डॉक्टर चमका ने अपने पत्रों में कोलंबस की नौवहन क्षमताओं की प्रशंसा की है। हालांकि कोहन ने यह भी लिखा है कि वह अपने लोगों को संभालने में अयोग्य था और अक्सर उनके साथ झगड़ा किया करता था। कोलंबस के पत्रों को पढ़कर हम उसकी आंतरिक उथल-पुथल और यात्रा के संबंध में उसकी चिंता और अनिश्चितता का भी अनुमान लगा सकते हैं। लंबे समय तक कोलंबस सोचता रहा कि वह एशिया के लिए एक नया मार्ग का खोज कर रहा है। जब भी उन्हें कोई नई भूमि मिलती तो वह उसे एशियाई भूमि या भारत, चीन, जापान आदि से जोड़ता, जो कि मार्को पोलो के वृत्तांत के समानता था। और चालक दल का मनोबल बढ़ाने के लिए वह अक्सर उनसे कहता कि खजाने की भूमि की खोज के लिए उन्हें जो मील तय करना था अभी उससे कम दूरी तय की गई है, लेकिन वास्तव में वह चालक दल को बताई गई दूरी से अधिक दूरी तय किया था। जैसे जैसे यात्रा जमीन देखे बिना आगे बढ़ती गई, कोलंबस की चिंता बढ़ती गई। उसके दल के बीच में संदेह, विद्रोही फुसफुसाहट और अधिक बढ़ा दिया। हॉवर्ड जिन जैसे इतिहासकारों की कृतियां भी कोलंबस के चरित्र के आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन पर प्रकाश डालती है, जिसमें औपनिवेशिक हिंसा और शोषण को कायम रखने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विशाखा। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों में महान इतिहासकार क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं के बारे में, कि उन्होंने स्पेनियों के प्रति मूल निवासियों की उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। महान इतिहासकार क्रिस्टोफर कोलंबस के दूसरे अभियान पत्रों से स्पेनियों के बारे में भारतीयों के विचारों का पता चलता है। कोलंबस ने अपने पत्रों में सबसे पहले स्वदेशी लोगों को सौहार्दपूर्ण और आमंत्रित करने वाला बताया है। उन्होंने स्पेनियों के साथ कपास, तोते और भालों का आदान प्रदान करने की उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता का उल्लेख किया है। हालांकि कोलंबस की पूरी यात्रा के दौरान दोनों गुटों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। जब स्पेनियों ने द्वीपों को बसाया तो कोलंबस स्वदेशी विरोध और शत्रुता को याद करता है। स्थानीय लोगों का विरोध, जबरन मजदूरी और भूमि अधिकार जैसे स्पेनिश शोषण के बारे में चिंताओं से उत्पन्न हुआ। कोलंबस स्पेनिश स्वदेशी संघर्षों और स्पेनिश जहाजों और गांवों पर हमलों को स्वीकार करता है। इन संघर्षों के बावजूद कोलंबस ने स्वदेशी लोगों को संभावित रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने और स्पेनिश प्रयासों के लिए मजदूरों के रूप में देखा। फिर कोलंबस ने की दूसरी यात्रा के दौरान स्पेनियों और मूल निवासियों के बीच एक जटिल संबंध दर्शाते हैं, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल हैं, जिसमें मूल निवासियों का रवैया जिज्ञासा और आतिथ्य से लेकर स्पेनिश अतिक्रमण के प्रतिरोध तक है। क्रिस्टोफर कोलंबस की दूसरी यात्रा के दौरान यह पहली बार था जब कोलंबस का सामना नई दुनिया की नरभक्षी निवासियों कैरिब्स से हुआ। जब वह कैरिब्स के गांवों में तट पर गया तो उसने घरों में बड़ी संख्या में हड्डियों और खोपड़ियां लटकी हुई देखी। बहुत कम पुरुष दिखाई दिए, क्योंकि वहां की महिलाओं ने स्पेनिश और स्पेनिशियों को बताया कि कैरिब अन्य द्वीपों पर छापेमारी कर रहे थे। कई लोग स्पेनियों को देखकर भाग भी गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे कैरिब हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की दूसरी यात्रा में चीफ कानोबी के नेतृत्व में स्पेनिश और टैनो स्वदेशी लोगों के बीच विरोध और लड़ाई देखी गई। टैनो ने शुरू में स्पेनियों का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उन्हें उनके असली इरादों का एहसास हुआ
और उन्होंने अपनी भूमि और लोगों की रक्षा की। टैनो नेता कानोबी स्पेनिश विस्तार का विफल करने में आवश्यक थे। उन्होंने गतिविधियों को बाधित करने और लोगों को मारने के लिए स्पेनिश समुदायों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध हमलों का आदेश दिया। सैन्य अभियानों के अलावा टैनो प्रतिरोध ने एकीकृत मोर्चा बनाने के लिए पड़ोसी जनजातियों के साथ राजनयिक साझेदारी की मांग की। टैनो ने स्पेनिश के बेहतर हथियार, बीमारियों और स्पेनिश स्वदेशी सामुदायिक विभाजन के खिलाफ संघर्ष किया। स्पेनिश विजय ने टैनो की संख्या कम कर दी और औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। फिर धीरे धीरे हम देखते चलते आए कि यह विद्रोह में फंसे हुए मूल निवासियों को खोजने के लिए कोलंबस क्यूबा से हिस्पनियोला लौट आया। उन्होंने व्यवस्था बहाल करने के लिए पेड्रो मार्गारेट को नियुक्त किया, लेकिन मार्गारेट के त्याग के कारण स्वदेशी आबादी के खिलाफ स्पेनिश क्रूरता बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध से 10 ईसाइयों की हत्या कर दी और 40 बीमार व्यक्तियों वाले एक आवास पर हमला कर दिया। लौटने के बाद कोलंबस ने हमलों के लिए कैप्सी को दंडित किया। मूल निवासियों ने स्पेनिश शासन के अधीन होने से इनकार कर दिया, जिससे द्वीप पर अशांति फैल गई। कोलंबस ने ग्वाका नगरी की मदद से कैकियों से लड़ने की योजना बनाई, क्योंकि वहां केवल 4 स्वदेशी शासक थे। इन सभी परिदृश्यों को देखते हुए महान कोलंबस की यात्राएं वर्णित हैं। आई थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। मूल निवासियों के प्रति स्पेनियों का रवैया। कोलंबस ने अपनी पत्रिका में स्वदेशी लोगों के साथ अपने पहले संपर्क को जिज्ञासु और स्वागत योग्य बताया। कोलंबस का वर्णन कोलंबस कहते हैं कि स्वदेशी लोग यूरोपीय लोगों से सावधान रहते थे, जैसे कि सीधे बातचीत न करना। मैंने इंडीज में खोजे गए पहले द्वीपों पर कुछ लोगों को तो बलपूर्वक पकड़ लिया, क्योंकि उनके पास ना तो हथियार था और ना ही वे उन्हें जानते थे। उन्हें अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। कोलंबस ने स्थानीय लोगों की सावधानी और यूरोपीय हथियारों के साथ अपरिचितता को स्वीकार किया, जिससे संभवतः उनका डर पैदा हुआ। कोलंबस और उनके दल ने कैरेबियन में गहराई से यात्रा करते समय स्वदेशी लोगों का अधिक जटिल रूप से सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर संसाधन और क्षेत्र विवाद हुए। कोलंबस ने हिस्पेनियोलल मूल निवासियों के साथ एक खूनी लड़ाई का वर्णन किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि मुझे लगता है कि वे आसानी से ईसाई बन सकते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि उनमें कोई आस्था नहीं है। कोलंबस ने स्थानीय लोगों को संभावित ईसाइयों के रूप में देखा, लेकिन विजय के नाम पर उनकी अधीनता को उचित ठहराया। स्वदेशी नेताओं ने आमतौर पर अपने हितों की रक्षा करते हुए कोलंबस के साथ सहयोग किया। स्वदेशी लोगों ने यूरोपीय औपनिवेशिक समाज में घुलने मिलने से इनकार कर दिया और अपनी भाषाएं, परंपरा और सामाजिक संरचनाएं बरकरार रखी। कोलंबस संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बाधाओं को समझता था, क्योंकि वह स्वदेशी लोगों की भाषाओं और संस्कृतियों को समझने का प्रयास करता है, परंतु वह अफसोस जताते हुए कहता है कि कोई भी दुभाषिया उनके संचार को पाट नहीं सकता। मुझे पता है कि वे कुछ समय तक बात नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपस में बात करते आए हैं। यह अध्याय अंतर सांस्कृतिक संचार की कठिनाइयों और यूरोपीय और स्वदेशी लोगों के बीच समझ में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालता है। इन तकनीकों और यूरोसेंट्रिज्म, जिसने अधिकांश विस्तारवादी प्रयासों को बढ़ावा दिया, ने न केवल कोलंबस बल्कि दूसरी यात्राओं के दौरान उन्हें और आक्रामक बना दिया। स्वदेशी लोगों के प्रतिरोध ने स्पेनियों द्वारा असभ्य लोगों को सभ्य बनाने को उचित ठहराया। हालांकि दूसरी यात्रा में कोलंबस भारतीयों द्वारा हिस्पेनियोला ला नविदाद शहर के विनाश से बेहद परेशान था, और एक निश्चित प्रतिशोध ने अब मूल निवासियों के प्रति उसके रवैये को सूचित किया, और हम मूल निवासियों के स्पेनियों के बीच बढ़ती कला को देख सकते हैं। कोलंबस की खोज का प्रभाव।
क्रिस्टोफर कोलंबस की खोजों ने यूरोपीय देशों के लिए अमेरिका में बसने और वहां से लाभ कमाने का द्वार प्रशस्त किया। जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार कोलंबस के आगमन से पूर्व संध्या पर हिस्पैनियोला की जनसंख्या लगभग 8 मिलियन थी। मूल हिस्पैनियोला की आबादी 1496 ईस्वी में घटकर 4 मिलियन हो गई और 1600 के दशक के मध्य तक 50,000 के आसपास रह गई, जो कि विलुप्त होने के कगार पे थी। अमेरिका और यूरोप के बीच नए वाणिज्यिक मार्गों का खुलना एक महत्वपूर्ण विकास था। वनस्पति, जीव और बीमारियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लाने की प्रथा को क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर कोलंबियन एक्सचेंज के रूप में जाना जाता था। व्यापार के परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोग टमाटर, आलू और तंबाकू लाए, जबकि अमेरिकी मक्का और आलू जो यूरोप का प्रमुख पदार्थ बन गया। जब अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों को वृक्षारोपण और खदानों के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार की ओर रुख किया, जिसे कोलंबस के अभियानों ने एक व्यापक तरीके से सक्षम करने में मदद की। इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को गति दी, जिसने परिणाम स्वरूप अंततः शोषण की नस्लवादी व्यवस्था, असंख्य लोगों का विस्थापन, लाखों अफ्रीकी अमेरिकन को जबरन प्रवास के साथ हुआ। अमेरिका में समकालीन चुनौतियां जैसे कि स्वदेशी अधिकार, भूमि दावे और सांस्कृतिक पहचान क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा की विरासत से प्रभावित है। पूरे अमेरिका में संस्कृतियां अभी भी यूरोप उपनिवेशीकरण द्वारा शुरू की गई सदियों के उत्पीड़न, असमानता और शोषण के प्रभाव को महसूस कर रही है। In conclusion, I would like to say that Christopher Columbus' expeditions to Americas in 1492 were influenced by the quest of new lands, motivated by the desires of glory, wealth, and God. This event is significant to his story because it changed the trajectory of global interactions and redefined human civilization. But this narrative surrounding Columbus' expedition is far from simple. His enormous success is boasted in the classic literature and even today in majority of documentaries filled by Eurocentric perspective on this specific subject. Historians have an opportunity to correct this imbalance in discourse by taking the initiative to understand indigenous societies from their own perspective, which is conspicuously lacking. One note